السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ماہرخ شہریار۔ اہم خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور غازی آباد میں ذہنی معذور لڑکی سے مبینہ زیادتی کا کیس ایسے میں ڈی آئی جی آپریشنز کی جانب سے ایس ایچ او سمیت پورے عملے کو معطل کیا گیا ہے۔ تھانے میں فرنٹ ڈیسک کے اہلکار بھی معطل کر دیے گئے ہیں۔ 2 روز قبل اے ایس آئی عمران نے ذہنی معذور لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ پولیس نے اے ایس آئی کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار بھی کر لیا ہے۔ مزید اپڈیٹ یہ سامنے آ رہی ہیں کہ ڈی آئی جی کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایس ایچ او سمیت پورے عملے کو اب معطل کر دیا گیا ہے۔ میں فرنٹ ڈیسک کے اہلکار کو بھی معطل کیا گیا کہ لاہور غازی آباد میں ذہنی معذور لڑکی سے مبینہ زیادتی کا کیس ایسے میں ڈی آئی جی آپریشنز کی جانب سے ایس ایچ او سمیت پورے عملے کو معطل کیا گیا ہے۔ تھانے میں فرنٹ ڈیسک کے اہلکار بھی معطل کر دیے گئے ہیں۔ 2 روز قبل اے ایس آئی عمران نے ذہنی معذور لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ پولیس نے اے ایس آئی کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار بھی کر لیا ہے۔ مزید اپڈیٹ یہ سامنے آ رہی ہیں کہ ڈی آئی جی کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایس ایچ او سمیت پورے عملے کو اب معطل کر دیا گیا ہے۔ تھانے میں فرنٹ ڈیسک کے اہلکار کو بھی معطل کیا گیا کہ لاہور غازی آباد میں ذہنی معذور لڑکی سے مبینہ زیادتی کا کیس ایسے میں ڈی آئی جی آپریشنز کی جانب سے ایس ایچ او سمیت پورے عملے کو معطل کیا گیا ہے۔ تھانے میں فرنٹ ڈیسک کے اہلکار بھی معطل کر دیے گئے ہیں۔ 2 روز قبل اے ایس آئی عمران نے ذہنی معذور لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ پولیس نے اے ایس آئی کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار بھی کر لیا ہے۔ مزید اپڈیٹ یہ سامنے آ رہی ہیں کہ ڈی آئی جی کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایس ایچ او سمیت پورے عملے کو اب معطل کر دیا گیا ہے۔ تھانے میں فرنٹ ڈیسک کے اہلکار کو بھی معطل کیا گیا۔ ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ کراچی کے میر رضا علی قتل کیس میں اہم پیش رفت سامنے آ رہی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مقتول کی نقل و حرکت سے متعلق مزید سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی ہیں جن کو شواہد کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ پولیس نے موبائل فون ملنے کے مقام سے مزید شواہد بھی اکٹھے کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ سی سی ٹی وی شواہد کی مدد سے تفتیش کا دائرہ مزید وسیع کر دیا گیا ہے۔ خرم گلزار ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ خرم، یہ جو ابھی کیس چل رہا ہے اس میں مزید کیا پیش رفت سامنے آئی ہے؟ دیکھیں، میر رضا قتل کیس میں نئی فوٹیج بھی سامنے آئی ہے۔ اب ایک فوٹیج جو سامنے آئی ہے اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس کو ملنے والا موبائل فون جو ہے وہ کس طرح سے تفتیش کاروں تک پہنچا تھا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی ہے جو کہ شادی ہال کی ہے، گلستان جوہر بلاک 1 کی، جہاں پہ میر رضا کو گزرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ میر رضا اپنی جیب سے نکال کے کوئی چیز سڑک پہ پھینکتے ہیں جس کے بعد اس کی لائٹ بھی روشن ہوتی ہے۔ تحقیقاتی جو ادارے ہیں ان کا بتانا ہے کہ موبائل فون جو تھا یہ جو کہ شہری کی ذریعے ان تک پہنچا ہے، تاہم وہ لاک ہونے کی وجہ سے اس میں سے جو عام شواہد ہیں وہ اب تک سامنے نہیں آ سکے۔ لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ میر رضا اپنے گھر سے جو آن لائن ٹیکسی بک کرنے کے بعد یہاں پہنچے تھے اور کچھ ہی فاصلے پہ رک گئے تھے۔ یہاں انہوں نے موبائل فون پھینکا ہے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی سامنے آئی کہ مقتول نے اپنے جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ تھے وہ بھی جو ڈی ایکٹیویٹ کر دیے تھے۔ تاہم تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ نئی ٹیم جو بنائی گئی ہے اس کی جانب سے بھی جو ہے وہ تفتیش کی گئی ہے اور مختلف علاقوں میں چھاپے مارنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے خرم، اس حوالے سے آپ سے مزید جانتے رہیں گے۔ فی الوقت آپ کا بہت شکریہ، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایک اہم کیس ہے، ہائی پروفائل کیس، جس میں کافی شواہد اب تک سامنے آ چکے ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو نئی فوٹیج ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے جو مقتول کی نقل و حرکت ہے اس سے متعلق یہ فوٹیج بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے موبائل فون ملنے کے مقام سے مزید شواہد بھی اکٹھے کر لیے ہیں۔ اور ابھی خبر یہ ہے کہ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم، ایسے میں فتنہ الخوارج کے خلاف جنگ میں پاک فوج اور خیبر پختونخوا پولیس شانہ بشانہ ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ کے پی پولیس کے مہارت میں اضافے کے لیے پاک فوج کے زیر اہتمام ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پولیس اہلکاروں اس کے علاوہ کمانڈوز کو جدید جنگی سیکیورٹی ڈرلز کی عملی مشقیں کروائی گئی ہیں۔ ٹریننگ کا مقصد دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں سے نمٹنے کی استعداد کار کو مضبوط بنانا تھا۔ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم ہے۔ فتنہ الخوارج کے خلاف جنگ میں پاک فوج اور خیبر پختونخوا پولیس شانہ بشانہ ہے۔ کے پی پولیس کی مہارت میں اضافے کے لیے پاک فوج کے زیر اہتمام ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا۔ ایسے میں پولیس اہلکاروں کمانڈوز کو جدید جنگی سیکیورٹی ڈرلز کی عملی مشقیں بھی کروائی گئیں۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ طالبان رجیم کے خلاف بڑھتی ہوئی مخالفت، مسلح گروپس کی مزاحمت میں تیزی آتی نظر آ رہی ہے۔ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ سابق افغان فوجی جنرل نے منظر عام پر آ کر طالبان رجیم کو چیلنج کر دیا ہے۔ جنرل سمیع سادات نے قندھار سے فوجی کارروائیوں کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ افغان عوام طالبان رجیم سے بدظن ہو چکے ہیں۔ طالبان رجیم کے خلاف بڑھتی مخالفت ہے، ایسے میں مسلح گروپس ہیں ان کی مزاحمت میں تیزی آ رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مسلح گروپس میں اضافہ ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ پہلی بار سابق افغان فوجی جنرل نے منظر عام پر آ کر طالبان رجیم کو چیلنج کیا ہے۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر اسلام آباد میں نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ کشمیری عوام پر بھارتی وحشیانہ مظالم کو اجاگر کیا گیا ہے۔ کشمیری میڈیا کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے، جبکہ آپ کو بتا دیں کہ کشمیری عوام کو درپیش مشکلات کی عکاسی اس میں کی گئی ہے۔ بھارتی فوج کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم کی عکاسی بھی کی گئی ہے۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر اسلام آباد میں ایک نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مختلف پینٹنگز کے ذریعے اور مختلف تصاویر کے ذریعے جو بھارتی وحشیانہ مظالم ہیں ان کو اجاگر کیا گیا ہے۔
अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में मौसर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां जारी हैं। ऐसे में लकी मरवत में कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद खवारिज हलाक हो गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए बता रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के मुतादिद ठिकाने तबाह किए हैं। इसके अलावा ये भी खबर मौसूल हो रही है कि भारी मकदार में असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान भी बरामद किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से खैबर पख्तूनख्वा में मौसर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां। लकी मरवत में कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद खवारिज हलाक हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के मुतादिद ठिकाने भी तबाह किए हैं। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि भारी मकदार में असलहा, इसके साथ साथ गोला बारूद और दीगर सामान भी बरामद कर लिया गया है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से ये मुस्तकिल कार्रवाइयाँ हैं जो कि जारी हैं। खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में मौसर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ की गई हैं और सिक्योरिटी ज़राए ये कन्फर्म कर रहे हैं कि लकी मरवत में कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद खवारिज हलाक किए गए हैं, उनको जहन्नुम वासिल किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के मुतादिद ठिकाने तबाह किए हैं। इसके अलावा भारी मकदार में असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान भी बरामद किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से मुस्तकिल बुनियादों पर ये कार्रवाइयाँ रिपोर्ट हो रही हैं। बलूचिस्तान के हवाले से बात कर लें तो वहाँ पर भी, इसके अलावा KP में भी मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाइयाँ और मुख्तलिफ ऑपरेशन बरामद हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से ये कार्रवाइयाँ रिपोर्ट हो रही हैं। मौसर इंटेलिजेंस बेस्ड ये कार्रवाइयाँ हैं। सिक्योरिटी ज़राए बता रहे हैं कि लकी मरवत में कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद खवारिज हलाक कर दिए गए हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और पाक अफवाज शाना बशाना है। ब्रिगेड कमांड और इसके अलावा CCPO पेशावर की जानब से चेक पोस्टों का दौरा किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मुश्तरका चेक पोस्टों पर तैनात पाक फौज पुलिस जवानों से मुलाकात की गई है। जवानों की पेशा वराना महारत, लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखने के अज़म को भी दोहराया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और पाक फौज की जानब से शाना बशाना ये खड़े हैं दोनों। ये बताया जा रहा है कि ब्रिगेड कमांडर और इसके अलावा CCPO पेशावर हैं, उनकी जानब से चेक पोस्टों का दौरा भी किया गया है। अहम खबर आ रही है, आपको बताएं कि सिंध के स्कूल्स के अंदर चेहरे से हाजिरी लगाने के निज़ाम की मंजूरी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि सिंध के छः अजला हैं जिनमें 17 अगस्त से बाकायदा इस टेक्नोलॉजी का आगाज़ हो जाएगा। कामयाब आजमाइश के बाद सूबे भर में मरहलावार तौसी दी जाएगी। असातिज़ा की हाजिरी अब फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी से मॉनिटर की जाएगी। हर बच्चे को मयारी तालीम की फराहमी तरजीह है। वज़ीर आला सिंध की जानब से ये कहा गया है कि सिंध के स्कूल्स में चेहरे से हाजिरी लगाने के निज़ाम की मंजूरी दे दी गई है। बाकायदा तौर पर बताया जा रहा है कि सिंध के 6 अजला हैं जिनमें 17 अगस्त से इस टेक्नोलॉजी का आगाज़ हो जाएगा। कामयाब आजमाइश अगर हो गई तो इसके बाद सूबे भर में मरहलावार तौसी दी जाएगी, जबकि असातिज़ा की हाजिरी भी अब फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी से मॉनिटर की जाएगी। हर बच्चे को मयारी तालीम की फराहमी तरजीह है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों, सैलाबी रेलों और हादसात के बायस ख़वातीन और बच्चों समेत मुतादिद अफराद जाँ बहक और ज़ख्मी हो गए, जबकि कई इलाकों में अमलाक और ज़रई ज़मीनों को भी शदीद नुकसान पहुँचा। जहलम में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद और मैं हूं शुमाइल अरशद। खबर यह है कि हुकूमत ने आवाम के बड़े जख्मों पर छोटी पट्टियां लगा दी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद हुकूमत ने पेट्रोल सिर्फ 4 रुपये 8 पैसे सस्ता करने का ऐलान कर दिया। डीजल भी 2 रुपये 45 पैसे सस्ता किया गया। फी लीटर पेट्रोल 332 रुपये 95 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत 389 रुपये 93 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमती फैसले पर अवाम एक बार फिर भड़क उठे। हुकूमत ने अवाम के बड़े जख्मों पर छोटी पट्टियां लगाई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो की गई है, लेकिन कमी मामूली है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद हुकूमत ने पेट्रोल सिर्फ 4 रुपये 8 पैसे सस्ता करने का ऐलान किया, जबकि डीजल भी 2 रुपये 45 पैसे सस्ता किया गया है। फी लीटर पेट्रोल 332 रुपये 95 पैसे का हो गया है, जबकि डीजल की कीमत 389 रुपये 93 पैसे फी लीटर हो गई है। हुकूमती फैसले पर अवाम एक बार फिर मायूस हैं। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे से मुल्क में महंगाई का नया तूफान आने का खदशा पैदा हो गया। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में महंगाई 10% तक रहने का इम्कान है, जबकि गैर मुल्की सरमायाकारी और बरामदात में भी नुमाया कमी देखी गई है। अवाम के लिए एक और माशी झटका। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे से पाकिस्तान में महंगाई का नया तूफान आने का खदशा। तस्दीक खुद वजारत खजाना ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कर दी। वजारत खजाना की माहाना आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2026 में महंगाई की शरह 9 से 10% तक रहने का इम्कान है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि अमरीका और ईरान की कशीदगी आलमी तवानाई की कीमतों के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025 और 26 के दौरान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 33.9% की नुमाया कमी देखी गई, जबकि मुल्की बरामदात भी 6.4% कमी के साथ 30.8 अरब डॉलर हैं।
दूसरी जानिब तरसीलात ज़र 8.6 अरब डॉलर हो गईं। FBR की टैक्स वसूलियों में 10.8% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। ताहम जुलाई तक सितंबर कम बारिशों के बायस कपास, चावल और गन्ने जैसी खरीफ की फसलें शदीद मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया गया है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर 8 अगस्त से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रांसपोर्टर्स रहनुमा मलिक शहजाद आवान का कहना था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यौमिया तब्दीली ख़त्म की जाए। उन्होंने माहाना निज़ाम लाने और 7% विद होल्डिंग टैक्सेस ख़त्म करने का मुतालबा भी किया है। रोज़ाना की बुनियाद पर डीजल पेट्रोल की कीमतों में तब्दीली का फेडरल गवर्नमेंट का डिसीजन हो या रोज़ाना की बुनियाद पर डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का जो वफाकी हुकूमत का फैसला हो और दीगर विद होल्डिंग टैक्स, टूल टैक्स में इजाफा हो या दीगर हमारे मुल्क की जो दिसंबर की हमारी 10 दिन की हड़ताल थी उसमें वफाक, पंजाब, सिंध उनकी तरफ से जो मुआहदे किए गए उस पर अमल दरामद ना होने की वजह से आज पाकिस्तान भर की तमाम एसोसिएशन ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर 8 तारीख से 8 अगस्त से बरोज़ हफ्ते के दिन से हम मुल्क की हड़ताल का ऐलान करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि फरसूदा निज़ाम से आवाम को हुकूक नहीं मिल सकते। नाम निहाद सियासतदान जो चापलूसी करते हैं उनके इत्तेहाद ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। एक तबके ने 78 साल तक हम पर हुक्मरानी की, लेकिन हालात आज भी बदतरीन है। महंगाई, पेट्रोलियम लेवी और बिजली के भारी बिलों के खिलाफ इशारा कायदीन पर खवातीन का समंदर उमड़ अमीर जमात इस्लामी ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। IPPs माफिया के खिलाफ आर या पार की जदोजहद का बगल बजा दिया। वक्त आ गया है कि मजमूई तौर पर महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ इस जद्दोजहद को तेज किया जाए। इसलिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ इस तहरीक को तेजतर करना है। खवातीन मार्च से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अब फॉर्म 47 की हुकूमत को घर भेजने का वक्त आ गया। गरीब आवाम से पेट्रोलियम लेवी के नाम पर भत्ता टैक्स वसूल किया जा रहा है। ये पैसे कहां से रिकवर करते हैं? पेट्रोलियम की लेवी से करते हैं, डीजल की लेवी से करते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत पेट्रोलियम लेवी का खात्मा करे। IPPs के जालिमाना मुआहदे मनसूख करके उनका फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। अमीर जमात इस्लामी ने 7 अगस्त को कराची ता चित्राल मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान भी किया। अहले कराची डाकुओं और जराइम पेशा अनासिर के रहमो करम पर पुलिस भी महफूज नहीं है। सुपर हाईवे पर मुलजिमान ने पुलिस एहलकार हमजा जमान को शहीद कर दिया। भैंस कॉलोनी में डकैती की CCTV फुटेज सामने आ गई। दूसरी जानिब ताजिर मीर रजा के कत्ल केस में तफ्तीशी टीम में CPLC को भी शामिल कर लिया गया है। कराची में न पुलिस एहलकार महफूज, न आम शहरियों की जान और माल। शहर कायद में फायरिंग से पुलिस एहलकार की शहादत और सनसनीखेज डकैती के वाक़यात। ताजिर मीर रजा के कत्ल में भी अहम पेशरफ्त। साइड सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग करके पुलिस एहलकार हमजा जमान को शहीद कर दिया। वाक़े के बाद मुलजिमान फरार हो गए। दूसरी जानिब भैंस कॉलोनी रोड नंबर 7 पर कायम गैस सिलेंडर की दुकान में रात गए 2 मुसल्लह डकैत मोटरसाइकिल समेत घुस गए और दराज से तमाम नकदी, मोबाइल फोन लूट कर बाआसानी फरार हो गए। CCTV फुटेज सामने आने के बाद भी मुलजिमान गिरफ्तार न हो सके। उधर नौजवान ताजिर मीर रजा अली के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। CPLC के असिस्टेंट चीफ को भी तकनीकी मुआवनत के लिए तहकीकाती टीम में शामिल कर लिया गया। कुछ रोज कबल मीर रजा की लाश बरामद हुई थी। पुलिस ने कहा नौजवान मकरूज भी था, ताहम तहकीकात जारी है कि उसने खुदकुशी की। कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक क़ुरा नून लीग के नाम निकला। 20 में से 14 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी 5 हलकों पर कामयाब। मुहाजिरीन की 12 में से 10 नशिस्तों पर नून लीग ने कब्जा जमाया। 2 पर पीपल्स पार्टी बराजमान। मुजफ्फराबाद की 9 में से 3 नशिस्तों पर नून और 3 पर PP कामयाब रही। फाते उम्मीदवारों के हामियों का जश्न। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का LA 27 में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग की वजह से वोट कास्ट नहीं किए जा सके। हल्के में पोलिंग अब 4 अगस्त को होगी। कराची में पुलिस की जानिब से MQM मरकज़ बहादराबाद को सील करने की कोशिश। पार्टी रहनुमाओं ने बगैर सरकारी हुक्मनामे को मरकज़ सील करने से रोक दिया है। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल की MQM मरकज़ पहुंचे, कहा कि सब कुछ ठीक कर लेंगे, कुछ भी सील नहीं हो रहा। अभी ये ताला चाबी वाला ड्रामा चल ही रहा था कि मैदान में वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की एंट्री हुई। बस फिर किया था, सहाफ़ियों ने उन्हें घेरा और सवालात की बौछार कर दी, मगर मुस्तफ़ा कमाल ने भी चुस्ती दिखाई। एक ही जुमले में सब उबलते जज्बात पर ठंडा पानी डाल दिया। कहा कि इतवार के वाक़े पर कुछ नहीं कहना चाहता, सब ठीक कर लेंगे, कुछ सील नहीं हो रहा। कुछ भी सील बिल नहीं हो रहा और ठीक हो जाएगा सर, डोंट वरी, कोई मसला नहीं।
तो क्या कहते हैं दोनों कल आज बैठेंगे, साथ बैठेंगे? कोई मसला नहीं, ठीक हो जाएगा। कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं इंशाल्लाह, डोंट वरी, परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा सारा। यानी मुस्तफा कमाल ने साफ बता दिया कि टेंशन ना ले, सस्पेंस खत्म हो चुका, सब कंट्रोल में है। से मुनाकिद करेगी और हर एहतजाज की भी दो प्रोग्राम होंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने ऐलान कर दिया, कहा एहतजाज सितंबर में होगा। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी मरकज़ बहादुराबाद से रवाना हो गए। गुज़श्ता रोज़ के वाक़े पर बात करने से इनकार करते हुए कहा कि सबको जश्न आज़ादी मुबारक। मज़ीद बोले, जो कल हुआ गुजर गया, जो आगे होगा अच्छा होगा। आज़ादी मुबारक। इरफान माइक आज़ादी है, अगस्त का महीना है, सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। थैंक यू। कल जो कुछ वाक़या हुआ इरफान माइक हुई आपकी, कल की बात क्या हो गया तो आइंदा का भी क्या होगा भाई मोबाइल सबसे बात हो रही है, सबसे बात सब अच्छा होगा। कोई इरफान एमकेएम बहादुराबाद मरकज़ पर इतवार को पेश आने वाला वाक़या गलत फहमी का नतीजा था। एमकेएम रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खामोशी तोड़ दी। कहा कि तकरार के बायस नाखुशगवार वाक़या पेश आया। क़यादत ने मामले का जायज़ा लिया है, अब सूरत हाल बेहतर हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।